Good evening, everybody. Which is my voice audible? All right. Okay. So, bache, last class were discussing adolescence, puberty, and its features. ये हमने last class में discuss किया था. And बच्चे we discussed a bit about male reproductive system. उसके कुछ जो features थे वो हमने discuss किए थे. So today बच्चे in session we are going to start up with male reproductive system. उसके various parts और functions वो हमें detail में discuss करना है. So बच्चे I'll be quickly moving to your NCERT book. NCERT book की side में move करूँगा. All right. And in the NCERT book, a diagram related to male reproductive system has been given. So this is a very important diagram. From exam point of view, questions related to this diagram are often asked. आपको diagram बनाने के लिए भी आ सकता है, and labeling is to be done according to function of various parts. Okay, तो बच्चे if we look at various parts in the male reproductive system, first is a pair of testes, which are the primary reproductive organs. Primary reproductive organs, they are concerned with production of sperms and testosterone. Okay, ये इनका primary function है. All right, then you see a structure, this tube-like structure here. बच्चे NCERT में इसकी labeling नहीं है. अगर आप इसको label करना चाहते हो, you can label this. This is known as epididymis. Epididymis. Okay. Epididymis then leads into a long tube-like structure. This tube, which is known as vas deferens. अब बच्चे vas deferens is often also known as sperm duct. Okay, vas deferens, sperm duct, and then it will lead further. ये ऊपर से overlap करके आ रहा है, and if you can see, यहाँ एक tube है ureter. This ureter is coming from kidneys. Okay. But what is the function of ureters? It brings urine from kidneys. और बच्चे ये ureter जो है कहाँ आके empty हो रहा है? It is emptying in urinary bladder. Urinary bladder में ureter urine transport कर रहा है. और अगर आप देखो इसके ऊपर से vas deferens overlap कर रहा है. It is not joining with ureter. It is overlapping ureters. और यहाँ आपको glands दिखाई देंगे. एक ये gland है which is known as seminal vesicle. Then you have prostrate gland. अब बच्चे यहाँ एक और ग्लैंड है जिसकी लेबलिंग नहीं है एनसीईआरटी में, आप इसको लेबल कर सकते हो दिस ग्लैंड, ये ग्लैंड है, दिस इज नोन एज कॉपर्स ग्लैंड. ओके, तो एक मैं एपिडाइडमिस की लेबलिंग करवा रहा हूं, दिस पोर्शन, दिस ब्रॉड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओवर द टेस्टिस, and this organ, this gland, which is known as Copper's gland. ये एनसीईआरटी की बुक में लेबलिंग नहीं है, ये आप कर सकते हैं. और बच्चे इनकी जो सेक्रीशंस हैं ये वास डेफरेंस में आती हैं, और वास डेफरेंस अल्टीमेटली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है which is known as urethra. This is the common passage. Okay, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, common passage for urine and passage of semen. Okay, and this is seen in a muscular structure known as penis. Okay, तो बच्चे ये important parts हैं male reproductive system के. Alright, और last class में बच्चे हमने ये भी discuss किया था why these pair of testes they are located outside in a scrotum, in a muscular bag-like structure which is known as scrotum. This is to regulate temperature. Okay, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. सो आवर मेन फोकस टुडे विल बी ऑन डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस. ओके बच्चे, आर दीज पार्ट्स क्लियर टू एवरीबॉडी? ये लेबलिंग एनसीईआरटी की बुक में भी है, डायग्राम भी है. आई हैव जस्ट एडेड टू, वन इज एपिडाइडमिस, सेकंड इज कॉपर्स ग्लैंड. ओके, चलो अब बच्चे व्हाट विल बी डूइंग इज विल बी डिस्कसिंग दीज पार्ट्स वन बाय वन एंड देयर फंक्शंस. सो बच्चे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके, जो इसमें सबसे पहला पार्ट आएगा दैट इज टेस्टिस.
Okay, pair, it is a pair which is located in scrotum. Located in scrotum. ओके, इसकी सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके प्राइमरी फंक्शन क्या है? इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ गैमीट्स. Large number of gametes called sperms. ठीक है, large number of gametes called sperms. इसका और क्या फंक्शन है बच्चे? ये तो इसका प्राइमरी फंक्शन हो गया, ये इसका प्राइमरी फंक्शन है. What is the other function that it plays? It also has a endocrine function. हार्मोन भी सेक्रेट करता है, ठीक है ना. It also produces male sex hormone known as testosterone. ठीक है, और बच्चे इसका क्या रोल होता है? This produces secondary sexual characters. It produces, yeah, it helps in developing secondary sexual characters. ठीक है, तो बच्चे ये रोल है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मेल्स में. अब बच्चे जो इसके बाद हमने सेकंड लेबलिंग की थी एनसीईआरटी में, दैट इज एपिडाइडमिस. वेयर इज द एपिडाइडमिस लोकेटेड? ओके, दिस पोर्शन, दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हियर, ये जो ब्रॉड ट्यूब है, दिस स्ट्रक्चर, दिस इज एपिडाइडमिस. एंड बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट एपिडाइडमिस, it is the part where temporary storage of sperms occur. But testes regularly continuously produce sperms. Okay, so epididymis it is concerned with, it acts as temporary storage for sperms. बच्चे और ये टेम्पररी स्टोरेज क्यों जरूरी है? बिकॉज बच्चे टेस्टिस आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स एंड दे विल रिक्वायर टाइम टू मेच्योर. तो वो मेच्योर होने का जो टाइम पीरियड है वो उस टाइम में कहाँ स्टोर हो जाते हैं? एपिडाइडमिस में. ओके, इट लीड्स टू, ये आप कह सकते हो, दिस हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स. बच्चा स्पर्म्स को मैच्योर होने में टाइम लगता है, तो वो सारा जो फंक्शनिंग है वो किधर होती है? एपिडाइडमिस में. दिस हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? नो, सी आलोक, आई डोंट नो ये आपके दिमाग में कैसे बात आई, स्पर्म्स लर्न टू स्विम देयर, ऐसा कुछ नहीं है. आप कह सकते हो कि स्पर्म्स को मैच्योर उसमें डिफरेंशिएशन होगी, पार्ट्स डेवलप होंगे अलग. ओके, लर्निंग टू स्विम देयर ऐसा कुछ नहीं है. यू कैन से इट विल डिफरेंशिएट. ओके, सो दिस हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स. दिस इज अकरिंग इन एपिडाइडमिस. उसके बाद है बच्चा थर्ड पोर्शन. ओके, उसके बाद है बच्चा थर्ड पोर्शन विच इज वास डेफरेंस. वास डेफरेंस,
Okay. Third portion is vas deferens. It is also known as sperm duct or vas deferens or sperm duct. ओके बच्चे वास डेफरेंस या स्पर्म डक्ट की जब हम बात करते हैं, दिस इज एक्चुअली ये वाला पोर्शन एपिडेर्मिस से यहां स्पर्म्स आके दे विल मूव टुवर्ड्स द यूरेथ्रा. ओके सो दिस इज द रूट और पैसेज which is actually helping in passage of sperm towards the urethra. Okay, helps to transport sperms towards the urethra. It helps to transport sperms towards the urethra. Okay, इसलिए हम इसको vas deferens या sperm duct भी कहते हैं. Okay, Yash, how much time does it take to mature sperms? बच्चा cycle जो है, I'm not sure about the duration, but it will take time. It is not an instant process. ये नहीं कि 2 दिन 3 दिन में ही sperm mature हो जाएगा. It takes time. पर बच्चे इसमें ये आपको याद रखना है कि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ओके, आलोक इज सेइंग 2 to 3 months. ओके, नॉट श्योर अबाउट ड्यूरेशन बट टाइम लगता है. ओके, या 30-40 डेज तो मान के चलिए, इतना तो लगता ही होगा, क्योंकि बच्चे सेल्स को डिवाइड होना है, फिर उनमें चेंजेस होने हैं. इट विल टेक टाइम बट इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय टेस्टिस. ठीक है ना. सो वास डेफरेंस और स्पर्म डक्ट, इसलिए एपिडेर्मिस में उनको स्टोरेज भी की जाती है. ऑलराइट, सो इट एक्ट्स एज टेम्पररी स्टोरेज फॉर स्पर्म्स. दिस हेल्प्स इन मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म्स. And vas deferens or sperm ducts, it helps to transport sperms towards the urethra. Okay, Alok is saying about 64 days, so that's about 2 months. Regeneration cycle or spermatogenesis will take about 64 days. Okay, तो I think आलोक ने ये गूगल से सर्च किया होगा, तो I think this is correct. इतना ही टाइम लगता होगा. It takes time. It is not an instant process. ये बहुत जल्दी sperms mature भी हो जाएंगे, बन भी जाएंगे. It takes time. All right, thank you so much आलोक. 64 days. Okay, चलो अब बच्चे यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें समझनी है. अगर हम बच्चे ये जो स्पर्म डक्ट का ये जो रूट देख रहे हैं, अब बच्चे इसमें ये जो ग्लैंड्स हैं, सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड. ग्लैंड्स क्या करते हैं? ग्लैंड्स विल प्रोड्यूस सेक्रीशंस एंड दीज सेक्रीशंस दे विल मिक्स विद स्पर्म्स टू फॉर्म सीमन. ओके, इसकी फंक्शनिंग भी हम कर देंगे. पहले बच्चे इन ग्लैंड्स के बारे में लिखेंगे. तो बच्चे फोर्थ पार्ट हम लिख रहे हैं एसेसरी ग्लैंड्स, मेल एसेसरी ग्लैंड्स. ओके, तो बच्चे मेल एसेसरी ग्लैंड्स में ये तीनों ग्लैंड्स हम लिखेंगे. प्रोस्ट्रेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल्स एंड कॉपर्स ग्लैंड. ओके, एसेसरी ग्लैंड्स में ये तीनों ग्लैंड्स आएंगे. ओके, दीज आर ग्लैंड्स which produce secretions. The sperms mix with these secretions to form a viscous, milky
white fluid known as semen. ओके तो बच्चे ये जो एसेसरी ग्लैंड्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. व्हाट दे डू इज दे प्रोड्यूस सेक्रीशंस, और ये जो सेक्रीशंस होती हैं ये स्पर्म्स के साथ मिक्स हो जाती हैं. एंड व्हेन दे मिक्स विद स्पर्म्स दे विल फॉर्म अ, यू कैन से विस्कस फ्लूइड व्हिच इज मिल्की वाइट इन कलर, और इसको हम कहते हैं सीमन. ओके, दिस इज नोन एज सीमन. अब अच्छा, सीमन प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सीमन का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज अ फ्लूइड जिसके अंदर स्पर्म्स प्रेजेंट है. ऑलराइट, अब अच्छा ये जो फ्लूइड है इसके अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं. म्यूकस होता है इसके अंदर, इसमें हार्मोन भी होता है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. न्यूट्रिएंट्स किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स फॉर स्पर्म्स, क्योंकि स्पर्म्स आर लिविंग सेल्स, दे रिक्वायर एनर्जी. उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी उन्हें कहां से मिलेगी? जो सीमन के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं. ओके, तो बच्चे फंक्शंस क्या है इसके? फंक्शन ऑफ सीमन, इसको मैं यहां हेडिंग दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फंक्शंस ऑफ सीमन. ऑलराइट, इसमें बच्चे जो नंबर 1 है, फर्स्ट थिंग, ऑलराइट, इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर. Slightly basic in nature. Semen is slightly basic in nature. अब अच्छा क्वेश्चन ये आएगा आपके माइंड में कि सीमन बेसिक क्यों है? ओके, व्हाई इज सीमन बेसिक इन नेचर? इसके पीछे वजह एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. रीजन ये है, जब सीमन बचे स्पर्म्स के साथ यूरेथ्रा में आते हैं, यूरेथ्रा इज कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन. अब बच्चे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिन ट्रेसेस, क्योंकि यूरिन के ट्रेसेस होंगे यूरेथ्रा में, तो यूरिन इज एसिडिक. यूरिन क्या होता है? एसिडिक नेचर है उसका. अब बच्चे स्पर्म्स जो हैं वो एसिडिक नेचर में सरवाइव नहीं कर सकते. स्पर्म्स एसिडिक नेचर में सरवाइव नहीं कर सकते. तो बच्चे इस चीज को कैसे अवॉइड किया जाता है? जो सीमन प्रोड्यूस होगा, सीमन इज बेसिक, सीमन इज बेसिक, तो ये क्या करेगा? व्हाट इट विल डू? इट विल न्यूट्रलाइज, इट विल न्यूट्रलाइज द ट्रेसेस ऑफ यूरिन, सो इट विल हेल्प इन सर्वाइवल ऑफ स्पर्म्स. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ओके, इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर. ऐसा क्यों होता है? दिस हेल्प्स इन neutralizing acidic pH. This helps in neutralizing acidic pH of urethra. ठीक है, ये एसिडिक पीएच जो है यूरेथ्रा का, ड्यू टू यूरिन ट्रेसेस, ड्यू टू ट्रेसेस ऑफ यूरिन. क्योंकि बच्चे जनरली तो यूरेथ्रा में यूरिन ही पास होता है, बट ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव प्रोसेस जब सीमन पास होगा, तो अगर सीमन का नेचर बेसिक ना हो तो यूरिन की वजह से यूरेथ्रा एसिडिक रहेगा, और स्पर्म्स जब उसके कांटेक्ट में आएंगे तो वो वहां सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. ओके, तो स्पर्म्स कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक पीएच, कैन नॉट सर्वाइव इन एसिडिक पीएच. ऑलराइट, तो ये इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है. सेकंड, provides nutrients. It provides
Okay, it provides nutrients for sperms to obtain energy. अब बच्चे आपके दिमाग में ये बात आएगी कि स्पर्म्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट क्यों है. बच्चे स्पर्म्स आर लिविंग सेल्स and they have to move. Once they are released into the female reproductive system, sperms have to move, they have to swim and for this they require energy. तो वो एनर्जी उन्हें कहां से मिलेगी? जो सीमन के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. ठीक है, इज दिस क्लियर? ये क्लियर है सबको? ऑल राइट. ओके, अब बच्चे चलते हैं. एसेसरी ग्लैंड्स हो गए. ओके, फिफ्थ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दिस इज urethra. Okay, this is the common passage for urine and semen. Okay, it is a common passage for urine and semen. उसके बाद बच्चे 6 पार्ट है जिसमें यूरेथ्रा प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज पेनिस. मस्कुलर structure which contains urethra. बच्चे अगर हम पेनिस की बात करते हैं, इसका रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है. बच्चे in human beings we have internal fertilization. What do we understand by the term internal fertilization? Fertilization process will occur inside the female body. Okay, so urethra, it is present inside the penis. It is an external muscular organ. तो बच्चे इसका रोल क्या है? It helps in transfer of semen. It will help in transfer of semen into female reproductive system, है ना? So this process is known as insemination. It helps in insemination. Okay, what do we understand by insemination? Transfer of semen into female reproductive system या female reproductive tract. Okay, insemination means transfer of semen into female reproductive tract. तो इसमें कौन हेल्प करता है? This function is carried out by penis. Okay, is this clear? Is this clear to everybody? Okay, all right. तो चलो अब बच्चे हम चलेंगे अब नेक्स्ट पोर्शन पे. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डन. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, ओके, सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं. Features of female reproductive system which are very important to understand before we talk about different parts and function. We are going to talk about features. Bache, you can say that
during the sexual contact, semen is released into the female reproductive tract. Yes, तो सीमन के अंदर स्पर्म्स होंगे. सीमन इज रिलीज्ड इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. During coitus, sexual contact, semen is released into the female reproductive tract. तो सीमन के अंदर ही स्पर्म्स है. Is that clear? Janvi, is that clear? All right. Okay. So features of female reproductive system. Okay. What are the features? अब इसके अंदर है बच्चे, number 1, which is very important, primary reproductive organs are ovaries. अब बच्चे ओवरीज कहाँ लोकेटेड होती है? मेल्स में तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बॉडी के बाहर है. व्हाट अबाउट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन फीमेल्स? इनसाइड और आउटसाइड? इनसाइड. ओके. लोकेटेड inside the body. Okay, they are located inside the body. Okay. Secondly, बच्चे what is the number of gametes? कितने gametes प्रोड्यूस करती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज? बच्चे at the start of puberty, when the menstrual cycle start, so during a cycle only one egg is produced. During a cycle only one egg is produced. Okay, सिर्फ एक ही egg produce होता है. All right, this is in contrast to male reproductive system where large number of sperms are produced. Okay, तो ये एक बहुत important difference है. This is a very important difference. Okay. Ovaries produce a single egg during a menstrual cycle ठीक है. menstrual cycle में ओवरीज सिर्फ एक ही एग प्रोड्यूस करेंगे. ओके. सी यश, ट्विन्स भी अलग अलग कैटेगरीज के होते हैं. पहला क्वेश्चन ये है क्या बच्चे, ट्विन्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम है कि बहुत ज्यादा है? जनरली व्हाट हैपेंस, अ सिंगल चाइल्ड इज बोर्न, है ना, बहुत लेस प्रोबेबिलिटी है. और ट्विन्स में भी बच्चे आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं जिनकी शक्लें और जेंडर सेम होता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी होना तो और भी कम है. ठीक है ना. तो बच्चे वो क्या होता है, वो कई बार जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी से भी हो सकता है, या कोई हार्मोनल प्रॉब्लम से हो सकता है कि एक साइकिल में 2 एग्स प्रोड्यूस हो गए. तो बच्चे जब 2 इंडिपेंडेंट एग्स प्रोड्यूस होंगे और दोनों फर्टिलाइज होंगे तो आइडेंटिकल ट्विन्स नहीं बनते, फ्रैटर्नल ट्विन्स बनते हैं जिनकी शक्लें सेम नहीं होती, जेंडर सेम नहीं होता. जब 2 एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में और वो फर्टिलाइज हो गए. आइडेंटिकल ट्विन्स तो बच्चे एक और रेयर अकरेंस है. वहां क्या होता है, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद वो एग डिवाइड हो जाता है, जाइगोट डिवाइड हो जाता है, तो वो 2 इंडिपेंडेंट फिर डेवलप हो जाते हैं इंडिविजुअल्स, उससे आइडेंटिकल ट्विन्स बनता है. अदरवाइज नॉर्मल में तो एक ही एग बनेगा. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू यश. तो बच्चे जो नॉर्मल अकरेंस है वो एक ही चाइल्ड है क्योंकि एक ही एग होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, पर कई बार
हार्मोनल प्रॉब्लम से हो सकता है। आलोक, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, हार्मोनल प्रॉब्लम से हो सकता है, हार्मोनल इम्बैलेंस से हो सकता है, दैट कैन हैपन। इसलिए तो ये बहुत रेयर अकरेंस है। ऑब्वियसली बच्चे, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी है ना, अगर प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो ट्विन्स नहीं बनते, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा हो सकता है। ओके, ऑलराइट, सो दे प्रोड्यूस अ सिंगल एग ड्यूरिंग अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। एंड बच्चे फीमेल्स की जो रिप्रोडक्टिव, yes Alok, you can say that that can be a cause। जैसे बच्चे जो लोग आईवीएफ कराते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, उसमें हॉर्मोन्स की हेल्प से एक ही साइकिल में बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करवाए जाते हैं। ovaries are induced to produce more than one egg, and that is done by hormones, that is to increase chances of fertilization। clear? all right, so ovaries produce a single egg during a menstrual cycle। और बच्चे फीमेल्स के अंदर क्या होती है, रिप्रोडक्टिव वायबिलिटी कम है इन फीमेल्स, reproductive period is less compared to males। अब बच्चे इसका क्या मतलब है, व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चे मेल्स कंटिन्यू टू हैव रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, और वो गैमेट्स भी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। फीमेल्स में तो बच्चे मीनार्क, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड देन मेनोपॉज, द लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके बाद उनकी रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी खत्म हो जाती है। सो इन फीमेल्स रिप्रोडक्टिव पीरियड इज लेस कंपेयर टू मेल्स। दिस मींस आफ्टर मीनोपॉज, आफ्टर मीनोपॉज females lose natural ability to reproduce। ability to reproduce। So after menopause, that is generally at the age of 45 to 50 years, okay, so natural जो उनके chances हैं रिप्रोड्यूस करने के वो खत्म, क्योंकि नेचुरली वो एग ही नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है, यस, बाय आर्टिफिशियल मींस आईवीएफ, फिर कोई और तरीका हो सकता है कि एग्स को ट्रांसफर कर दिया जाए और उन्हें हार्मोनल फिर डोजेस पे रख के कंसीव कराया जाए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। पर मीनोपॉज के बाद तो बच्चे फिर एग ही बनना बंद हो गया ना, तो नेचुरली कैसे रिप्रोड्यूस कर सकेंगे। अनिशा, इज दैट क्लियर? नेचुरली नहीं रिप्रोड्यूस कर सकते, आईवीएफ वगैरह से हो सकता है। ओके, चलो, अनदर इंपॉर्टेंट फीचर, थर्ड फीचर जो हम लिखेंगे इसमें बच्चे, फीमेल्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव पैसेज है और यूरिनरी पैसेज है वो अलग अलग है। ओके, द रिप्रोडक्टिव पैसेज, the reproductive and urinary tract are separate। ठीक है, रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट क्या है, एक दूसरे से सेपरेट है, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट कॉमन। मेल्स के अंदर बच्चे रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी ट्रैक्ट क्या थे, कॉमन थे, सेम पैसेज। पर रिप्रोडक्टिव और यूरिनरी ट्रैक्ट जो फीमेल में है वो सेपरेट है, आर सेपरेट इन फीमेल्स।
ठीक है, इज दिस क्लियर? चलो ओके, अब अजय वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बच्चे जस्ट अ मोमेंट. ओके चलो, सो बच्चे विल बी टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स. इनका हम एनसीईआरटी में डायग्राम देखेंगे लेबल्ड, एंड देन विल कम बैक टू डिस्कसिंग डिफरेंट पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस. ओके तो बच्चे ये लेबल डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी की बुक में. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ इट एंड लेबल द पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस. तो बच्चे दी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर पेयर ऑफ ओवरीज. ओके, पेयर ऑफ ओवरीज. उसके बाद जब ये एग रिलीज करते हैं, इट कम्स इनटू दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स. ओके, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स, यहां एग आता है. उसके बाद दिस pear shaped structure, muscular structure, it is known as uterus. Then a opening here which leads into tube like structure, this is known as cervix. And this is the portion, muscular tube like structure passage, okay, this is known as vagina. तो बच्चे ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं जो हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखते हैं. फर्स्ट इज ओवरी, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, this muscular bag like structure uterus, then opening which is known as cervix, and long tube like structure which is known as vagina. तो ये बच्चे डिफरेंट पार्ट्स हैं. ओके, अब इनके हम फंक्शंस डिस्कस करेंगे वन बाय वन. विल बी डिस्कसिंग देयर फंक्शंस वन बाय वन. तो इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स आएंगे, ओके पार्ट्स, तो इसमें बच्चे नंबर वन है पेयर ऑफ ओवरीज. Okay, they are present in abdominal cavity. Okay, और बच्चे ये जो पेयर ऑफ ओवरीज हैं, इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? देयर प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोड्यूस फीमेल गैमेट. Their primary function is to produce female gamete called ova. Female gamete called egg or ovum, called egg or ovum. known as कर लो, known as egg और ओवम. ठीक है, ये हमारा फीमेल गैमेट है जो ओवरीज प्रोड्यूस कर रही है, ये इनका प्राइमरी फंक्शन है. अब अजय इसके अलावा इनका और क्या फंक्शन होता है? दे ऑल्सो हैव एंडोक्राइन फंक्शन. ओके, दे ऑल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. और बच्चे ओवरीज में से दो इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स हैं जो सेक्रीट होते हैं. ओके, नंबर वन इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन, या आप इसको ऐसे भी स्पेल कर सकते हो ओ के साथ, OES. ओके, एस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन, इसका क्या फंक्शन है? आर फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स, फीमेल ईस्ट्रोजन.
इज, बच्चे ये एक ही हार्मोन के दो स्पेलिंग्स हैं, एस्ट्रोजन और ईस्ट्रोजन, एक ही बात है। इज फीमेल सेक्स हार्मोन, जैसे मेल्स के अंदर बच्चे टेस्टोस्टेरोन है, वैसे ही एस्ट्रोजन का क्या रोल है? इट प्रोड्यूसेस फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज कंसर्न्ड विद डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। उसके बाद बच्चे दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोजेस्टेरॉन helps to maintain pregnancy। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन, इसका क्या रोल है? ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करती है, तो प्रोजेस्टेरॉन को हम प्रेगनेंसी हार्मोन भी कह देते हैं। इट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। बच्चे वंस द फीमेल कंसीव्स, तो उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में प्रोजेस्टेरॉन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो ये हार्मोन नेचुरली कौन सेक्रीट करता है? ओवरीज, और ये हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, इज दिस क्लियर? ओवरीज के ये फंक्शन क्लियर है सबको? ओवरीज एग तो प्रोड्यूस करती ही हैं, साथ में एंडोक्राइन फंक्शन भी है, ये हार्मोन्स भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं, एस्ट्रोजन फीमेल सेक्स हार्मोन, उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन है जो प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है। ऑलराइट, बच्चे देखो प्रोजेस्टेरॉन कब बनता है? वंस दी ओवरीज रिलीज एग, तो उसके अंदर एक स्ट्रक्चर बनता है टिश्यू का विच इज नोन एज कॉर्पस ल्यूटियम। तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है? प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस करता है। अगर प्रेगनेंसी हो जाए, कंसीव हो गया, कंसेप्शन हो गया, तो ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर बढ़ता जाएगा, अदरवाइज इट विल अगेन डिक्लाइन। ओके, सो वंस अ फीमेल कंसीव्स, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल फिर बढ़ता ही है, और एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेवल चाहिए टू मेंटेन प्रेगनेंसी। तो डॉक्टर्स इंश्योर करते हैं कि इसका लेवल नॉर्मल से ऊपर रहे ताकि प्रेगनेंसी को मेंटेन किया जा सके। अगर क्योंकि लेवल नीचे गिरेगा तो नेचुरल अबॉर्शन भी हो जाता है, प्रेगनेंसी कैन बी टर्मिनेटेड नेचुरली ऑल्सो। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, ओके। अब बचे ओवरीज के बाद जो नेक्स्ट पोर्शन था, नेक्स्ट पार्ट था फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट। ओके, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट्स। फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स, ठीक है। अब बच्चे ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, फैलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट्स, दे कनेक्ट ovaries to यूट्रस। बच्चे फैलोपियन ट्यूब्स क्या करते हैं? ओवरीज को यूट्रस के साथ कनेक्ट करते हैं। और बच्चे इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है अगर आप फैलोपियन ट्यूब्स की बात करते हैं? बच्चे व्हेन यू टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। एग की फर्टिलाइजेशन किधर होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। एग रिलीज होगा, और बच्चे जो स्पर्म्स हैं वो वेजाइना में रिलीज होते हैं। they have to swim upwards through the uterus and they have to move into the fallopian tube। तो फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब के अंदर होती है। ऑलराइट, सो fallopian tubes, they are connecting ovary to uterus and they are also the site of fertilization, internal fertilization। ये इनका फंक्शन है। they connect ovaries to uterus, okay, they are also the site of internal fertilization।
बच्चे व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट विल अकर इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन फीमेल में किधर होती है? इसका आंसर क्या होगा? फैलोपियन ट्यूब्स या ओविडक्ट्स। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अब बच्चे जनरली स्टूडेंट्स को क्या कंफ्यूजन होती है? स्पर्म्स आर रिलीज्ड हियर, वजाइना। सो व्हाट स्टूडेंट्स थिंक इज, स्टूडेंट्स कई बार इसको गलत आंसर भी करते हैं। ओवरीज एग यहां रिलीज कर देंगे, दे थिंक कि एग यूट्रस में आएगा और स्पर्म्स भी यूट्रस में आएंगे और फर्टिलाइजेशन यहां होती है। और उनकी थिंकिंग के पीछे क्या प्रोसेस है? क्योंकि बेबी की डेवलपमेंट यूट्रस में है, सो दे थिंक फर्टिलाइजेशन अकर्स हियर। पर बच्चा दिस इज रॉन्ग, फर्टिलाइजेशन यहां होगी फैलोपियन ट्यूब में। ओके, स्पर्म्स आर रिलीज्ड इनटू द वजाइना, the sperms have to swim upwards into the fallopian tube, and sperms and egg if they are present together then only fertilization can occur. उसके बाद जो जाइगोट बनेगा वो यूट्रस में आएगा और वो यहाँ फिक्स होता है। तो स्टूडेंट्स की ये मिसकंसेप्शन होती है कि यूट्रस के अंदर क्योंकि डेवलपमेंट है बेबी की तो फर्टिलाइजेशन भी यही होती है, विच इज रॉन्ग। ये कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप करना है, इट इज रॉन्ग। फर्टिलाइजेशन किधर होगी? फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर, नॉट इनसाइड द यूट्रस। क्या ये चीज क्लियर है सबको? जनरली स्टूडेंट्स ये मिसकंसेप्शन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है, कि यूट्रस के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होती है। कई बार आंसर भी ऐसे कर देते हैं, तो ये गलत है। फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर होती है, इस चीज का ध्यान रखना है। ऑलराइट, सो दे कनेक्ट ओवरीज टू यूट्रस, दे आर द साइट ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद बच्चे जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट इज मस्कुलर पार्ट ऑफ द फीमेल। दिस पोर्शन, this is known as uterus. But this is also commonly known as womb of mother. It is also commonly known as womb of mother. क्यों? क्योंकि बच्चे आफ्टर फर्टिलाइजेशन दी जाइगोट विल मूव इनटू दी यूट्रस और एम्ब्रियो फीटस सबकी डेवलपमेंट यहां है। दिस इज द रीजन इट इज नोन एज वूम ऑफ मदर। ठीक है, सो यूट्रस इज अ मस्कुलर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। यूट्रस क्या है? यूट्रस इज muscular pear shaped structure, muscular pear shaped structure. Okay, it is the site of implantation बच्चे इम्प्लांटेशन का क्या मतलब है? फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस वॉल, फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो। इस प्रोसेस की सिग्निफिकेंस बच्चे हम अगली क्लास में करेंगे। इट इज फिक्सिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू द यूट्रस वॉल। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन की जो साइट है वो यूट्रस है एंड डेवलपमेंट of fetus, development of fetus during pregnancy. तो बच्चे प्रेगनेंसी के टाइम जो फीटस की डेवलपमेंट होती है वो किसके अंदर होती है? इट अकर्स इनसाइड द यूट्रस, ये यूट्रस के अंदर होती है। ठीक है, एंड फॉर दिस वेरी रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज द वूम ऑफ मदर। इट इज ऑल्सो commonly known as womb of mother। और बच्चे दिस इज फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि फीटस की डेवलपमेंट यहां है इसलिए हम इसको कॉमनली वूम ऑफ मदर भी कहते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? यूट्रस का फंक्शन क्लियर है? यूट्रस के अंदर बच्चे एम्ब्रियो आके फिक्स होगा। फिक्स क्यों होगा? क्योंकि सारी न्यूट्रिशन मदर के ब्लड से आनी है। तो ये हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे इम्प्लांटेशन। उसमें हमें प्लेसेंटा वगैरह का स्ट्रक्चर भी डिस्कस करना है। उसके बाद यहाँ डेवलपमेंट होती है फीटस की, चाइल्ड की डेवलपमेंट प्रेगनेंसी में यूट्रस के अंदर है, इसलिए उसको वूम ऑफ मदर भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर एवरीबॉडी?
ओके चलो, ओके लेट्स मूव ऑन। अब उसके बाद है बच्चे फोर्थ पोर्शन। फोर्थ पोर्शन जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में लेबल्ड है बच्चे, दिस इज सर्विक्स। बच्चे सर्विक्स इज दिस ओपनिंग वजाइना इनटू द यूट्रस। तो सर्विक्स इज नैरो ओपनिंग। ओके सर्विक्स क्या है? सर्विक्स ओपनिंग ऑफ यूट्रस इनटू वजाइना। ओके और बच्चे फिफ्थ है, फिफ्थ पार्ट है वजाइना। बच्चे दिस इज ऑल्सो कॉमनली नोन एज बर्थ कैनाल, commonly known as birth canal. It is commonly known as birth canal. ठीक है, इसको बर्थ कैनाल क्यों कहते हैं? अब बच्चे इसके पीछे दो रीजंस हैं। दिस इज द ओपनिंग सर्विक्स एंड सर्विक्स देन लीड्स इनटू वजाइना, दिस मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हियर, इसको कहते हैं बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल बच्चे दो रीजन से कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूरिंग क्वाइटस, क्वाइटस मींस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पेनिस इज इंसर्टेड इनटू द वजाइना और यहां सीमन रिलीज होता है, सीमन इज रिलीज्ड हियर। सेकेंडली आफ्टर प्रेगनेंसी पीरियड इज ओवर, द चाइल्ड इज नेचुरली पुश्ड आउट थ्रू द वजाइना, दिस इज द पैसेज फॉर fully developed baby to move out naturally after pregnancy is over. So this is the reason it is also known as the birth canal. Okay, so vagina also known as the birth canal. इसके पीछे क्या रीजन है? In this, semen is released ड्यूरिंग, बच्चे वजाइना के अंदर क्या रिलीज होता है? ड्यूरिंग कोइटस सीमन इज रिलीज्ड। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय कोइटस? बच्चे कोइटस मींस सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ओके बच्चे हर एक चीज के लिए टेक्निकल टर्म है। इन दिस सीमन इज रिलीज ड्यूरिंग कोइटस विच इज सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ओके देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आफ्टर pregnancy is over, period is over, the fully developed baby is pushed out by contractions of uterus and vagina. ठीक है, तो बच्चे यूट्रस एंड वजाइना की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है? अ फुली डेवलप्ड बेबी इज पुश्ड आउट। ओके तो दिस इज द रीजन इट इज नोन एज द बर्थ कैनाल। यस रोहन यू आर एब्सोल्युटली राइट, पर हम जनरली कॉमन टर्म्स नहीं यूज करते। ओके सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, फिजिकल कॉन्टैक्ट, हम उसके लिए टर्म क्या यूज कर रहे हैं? कोइटस। सो फॉर एवरी कॉमन टर्म दैट वी आर यूजिंग, उसके लिए टेक्निकल टर्म है। सो इन द फील्ड ऑफ स्टडी वी आर यूजिंग टेक्निकल टर्म्स और बायोलॉजिकल टर्म्स। इज दैट क्लियर? क्योंकि बच्चे जनरली व्हाट हैपेंस इज देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इनिबिशन, इनिबिशन होती है ना व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस। ओके सो दिस इज द रीजन इट इज ऑलवेज बेटर यू टॉक इन टेक्निकल टर्म्स, फिर आपको इनिबिशन नहीं फील होगी, क्योंकि बच्चे ये हमारी फील्ड ऑफ स्टडी है। इट इज अ फील्ड ऑफ नॉलेज, सिलेबस जो आपको कवर करना है।
तो अगर इनिबिशन ही होती रहेगी तो आप कभी अपने डाउट्स नहीं क्लियर कर सकते. दिस इज द रीजन ऑलवेज बेटर टू यूज टेक्निकल टर्म्स. ओके, so in this manner teacher is also comfortable, a student is also comfortable, because it is a field of study. हमें उसी तरीके से सोचना है. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. तो अभी देखो कितने टेक्निकल टर्म हम यूज कर चुके हैं ऑलरेडी, तो ये याद रखने हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे चैप्टर में, तो उसके बाद हम बच्चे क्या करेंगे, विल बी यूजिंग ओनली द टेक्निकल टर्म्स. ऑलराइट, ओके बच्चे, यू नीड टू रिमेंबर वजाइना जो है इट इज अ नैरो पैसेज. तो बच्चे सर्विक्स ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को सर्विक्स कह रहे हैं. ठीक है, ऑल राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. पार्ट्स एंड देयर फंक्शंस. बच्चे डायग्राम बनाना आना चाहिए आपको, फंक्शन के साथ लेबलिंग आनी चाहिए. ऐसे नहीं बोला जाएगा कि डायग्राम ड्रॉ करो और लेबल कर दो, ऐसे नहीं होता. आपको बोला जाएगा डायग्राम बनाइए और इस फंक्शन के अकॉर्डिंग उसको लेबल करिए. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस. ऑलराइट, चलो. सो बच्चे, वी कम टू द एंड ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. पार्ट्स एंड फंक्शंस इज डन. ओके, सो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी बच्चे, विल बी टॉकिंग अबाउट प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, फिर स्ट्रक्चर ऑफ प्लेसेंटा, एंड वी विल कंटिन्यू फर्दर. विल बी टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स. ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम इसको पिक करेंगे. ठीक है बच्चे, चलो, आई विल बी एंडिंग दिस सेशन हियर. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास.